तो यहाँ पे दोनों जगह जो है आपका n बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, और ये आ गया हमारा पैसेज है ना, जिसमें हम लोगों को पूरा इसको रीड करना है। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ पेपर्स को सॉल्व किया उसी तरीके से हम लोग ये पैसेज सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें मैं आप लोगों के लिए 2 बार इसको रीडिंग करूंगा, एक एक पैराग्राफ वाइज हम लोग रीडिंग करेंगे। हमको पहले दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग भी रीड करते जाएं, ठीक, समझें इसको, और उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, और इसके जो है 26 to 30 इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, रीडिंग करना हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं एक बार रीड कर रहा हूं थोड़ा स्लो फिर थोड़ा फास्ट। चलिए क्या लिखा हुआ है, विथ क्रिसमस फास्ट अप्रोचिंग, ऑर्नेट ट्रीज एंड स्ट्रिंग्स ऑफ डेकोरेटिव लाइट्स आर popping up in neighborhoods all across the world. However, very few people go the extent that David Richards has with his massive display that comprises over 500,000 lights. ठीक, अब थोड़ा इसको फास्ट पढ़ते हैं। With Christmas fast approaching, ornate trees and string of decorative lights are popping up in neighborhoods all across the world. However, very few people go the extent that David Richards has with his massive display that comprises over 1,000,000 lights. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूं थोड़ा सा स्लो। But then again, not everyone is trying to do what the Canberra resident is, claim the Guinness World Record for a second time. The Richards family won their first title when they created a similar display in 2011 using 3,31,038 lights, but their fame lasted only for a short period of time thanks to some New Yorker who outdid them in 2012 with about 15,000 additional display lights. ठीक, अब इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं। But then again, not everyone is trying to do what the Canberra resident is, claim the Guinness World Record for a second time. The Richards family, the Richards, अच्छा यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, ठीक, the Richards family won their first title when they created a similar display in 2011 using 3,31,038 lights, but their fame lasted only for a short period of time thanks to some New Yorkers who outdid them in 2012 with about 15,000 additional display lights. Next हम पढ़ते हैं, determined to reclaim the title, David emerged from retirement and in October and began the laborious process of building this astounding 5,02,165 light display, complete with a glowing reindeer and loud music. Though he achieved his goal, some of his neighbors who were still covering from the 2011 display were not so thrilled. Fortunately or unfortunately, since the lights are strung across David's property, there is no much they call do. अच्छा, there is no much they can do. चलिए अब थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ते हैं। Determined to reclaim the title, David emerged from retirement in October and began the laborious process of building this astounding 5,02,165 light display, complete with a glowing reindeer and loud music. Though he achieved his goal, some of his neighbors who were still covering from the 2011 display were not so thrilled.
Fortunately or unfortunately, since the lights are strung across David's property, there is not much they can do. Next पढ़ते हैं. Besides the cost of the lights that took a month to put up, the family expect to incur an electricity cost of $2,300 for a month. Fortunately, their local power company has agreed to forego the entire amount, and while David's primary reason for creating this rather overwhelming display has a selfish motive, there is bright side to it too. It doubles up as a fundraiser. चलिए तो इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं. Besides the cost of the lights that took a month to put up, the family expect to incur an electricity cost of $2,300 for a month. Unfortunately, their local power company has agreed to fortunately, their local power company has agreed to forego the entire amount. And while David's primary reason for creating this rather overwhelming display has a selfish motive, there is bright side to it too. It doubles up as a fundraiser. आगे देखते हैं, इसको स्लो पढ़ते हैं. In 2011, the thousands of people that visited helped raise $72,000 for various children's charities. David is hoping that things will be similar, if not better, this year. As for future displays, he is certainly not ruling them out, especially if his title is challenged again. और ये किसके द्वारा लिखी गई? मीरा डोलेसिया के द्वारा. ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसको, चलिए एक बार इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं. In 2011, the thousands of people that visited helped raise $72,000 for various children's charities. David is hoping that things will be similar, if not better, this year. As for future displays, he is certainly not ruling them out, especially if his टाइटल इज चैलेंज्ड अगेन. ठीक, रिटन बाय मीरा डोलेसिया. चलिए तो दोस्तों ये हमने जो है 2 बार इसकी रीडिंग की, इसको समझने की कोशिश की. तो जो हमने पढ़ा उससे एक आइडिया हमको लगा कि ये जो पैसेज, पर्टिकुलर जो पैसेज है, ये किसके बारे में है. ठीक है, ये पैसेज एक क्रिसमस के ऊपर एक पर्सन ने जो है बहुत बड़ा एक कोई ट्री, एक सजावट जो है उसके घर को उसने सजाया और बहुत सारी लाइट्स उसने उस पर लगाई, बहुत सारा उस पर खर्चा किया उस लाइट पे, और उसमें जो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आया. लेकिन जो कंपनी थी, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी बोर्ड था, उसने उस बिल को जो है माफ़ किया, है ना. फॉरगो का मतलब होता है उसको टाल दिया, माफ़ कर दिया. उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसका ये जो डेकोरेशन था, ये जो लाइट्स का डेकोरेशन जो उसने अपने घर को लाइट से डेकोरेट किया, तो बहुत सारे लोग उसको देखने आए, बहुत सारे विजिटर्स आए और उससे जो है बहुत सारा चैरिटी में, दान में जो है बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ, मतलब डबल हो गया. और उसने इतना बड़ा, इतनी सारी लाइट उसने इस्तेमाल करी थी कि उसके कारण जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है उसका नाम आ गया. तो एक ये पूरी की पूरी एक पैसेज जो हमारा है ये पूरा इसके ऊपर है. चलिए ये हमारा एक रफ आइडिया हमको लग गया कि किसके बारे में पूरा पैसेज है. अब हम लोग पूरा इसको डिटेल में वर्ड टू वर्ड इसको हम लोग समझने जा रहे हैं. आप लोग भी पूरा कंसंट्रेशन रखें, ध्यान रखें कि चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखो किसकी बात हो रही है? विथ क्रिसमस फास्ट अप्रोचिंग. तो क्रिसमस के जो फास्ट है, बहुत सारे लोग क्रिसमस पे, अच्छा ये फास्ट नहीं है, फीस्ट है. ठीक है, ये रॉन्ग वर्ड है आपका, जो राइट वर्ड है ये फीस्ट है. फीस्ट का मतलब है एक त्योहार या फेस्टिवल. ठीक है, ये आपका त्योहार.
तो ये जो क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस में जो है ये लोग उपवास नहीं रहते हैं, उपवास हमारे इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिसमस का जो त्यौहार है ये अप्रोचिंग मतलब आने वाला है, बिल्कुल अप्रोचिंग मतलब नज़दीक है। ऑर्नेट ट्री, ये ऑर्नेट जो है मतलब एक सजावट की जो ट्री, ऑर्नेट ट्रीज एंड स्ट्रिंग्स ऑफ डेकोरेटिव लाइट। तो ये ऐसे पेड़ जो होते हैं, है ना, बिल्कुल लाइट वाले जो पेड़ हैं, आपने देखे होंगे क्रिसमस पे जो क्रिसमस ट्री वगैरह जो होता है ना, तो वो उसको सजाना, वो जो पेड़ वगैरह में डेकोरेट, एक बहुत सारे आर्टिफिशियल पेड़ भी आते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे ट्री और स्ट्रिंग, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज, ठीक है, जो लड़े सीरीज जो हम लोग दिवाली पर हमारे घरों को जिससे हम लोग डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, उसकी बात हो रही है। किसकी? डेकोरेटिव लाइट्स की जो स्ट्रिंग है आर पॉपिंग अप। पॉपिंग अप मतलब इंक्रीजिंग, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब हर इन द नेबरहुड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आसपास आप जहां भी देखोगे क्रिसमस के टाइम, जो कि क्योंकि क्रिसमस जो एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग, आतिशबाजी उसमें होती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये आप जहाँ देखो वहाँ डेकोरेटिव लाइट्स जो हैं वो पॉपिंग अप, पॉपिंग मतलब आपको दिखेगी, हर घर पे दिख जाएगी, हर मार्केट में, बाजार में, हर जगह जो है आपको बहुत सारी क्रिसमस जो डेकोरेटिव लाइट्स है वो पूरी दिखेगी आपको हर जगह। तो उसी तरह की, उसी की यहाँ पर बात हो रही है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो, हाउएवर, हालांकि वेरी फ्यू पीपल गो द एक्सटेंड दैट डेविड रिचर्ड हैज, मतलब बहुत कम लोग जो है उतना कर सकते हैं जितना कि डेविड रिचर्ड ने किया। मतलब डेविड रिचर्ड ने ना सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे? मतलब बहुत कम लोग जो हैं डेविड रिचर्ड की बराबरी कर सकते हैं। कैसे? कि भाई इन्होंने क्या करा ऐसा स्पेशल? तो डेविड रिचर्ड हैज विथ हिज मासिव डिस्प्ले, बहुत ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा सा उन्होंने डिस्प्ले करा, क्या? दैट कंप्राइजेस ओवर 500,000 लाइट। मतलब आप सोचें कि उन्होंने अपने घर में कितनी लाइट लगाई होगी, 500,000, मतलब 1 मिलियन में आपके 10 लाख 10 लाख होती, उन्होंने 50 मतलब करीब 5 लाख, कितनी? 5 लाख्स उन्होंने लाइटिंग्स फिट करी, है ना, 5 लाख लाइट्स उन्होंने लगाई। कहाँ पे? अपने घर में, ठीक है। तो आप सोचो कि इतना एकदम रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया। अब देखो, बट देन अगेन, अच्छा एक बार फिर, नॉट एवरीवन इज ट्राइंग टू डू व्हाट द कैनबेरा रेसिडेंट इज। मतलब अब ये कैनबेरा रेसिडेंट कौन है? डेविड रिचर्ड, ठीक है। तो मतलब एक तो वो, इनका नाम क्या है? डेविड रिचर्ड इनका नाम है, ठीक है ना, डेविड रिचर्ड्स इनका नाम है, और ये कहाँ के रहवासी है? ये जगह का नाम है कैनबेरा, ठीक है ना। तो ये कैनबेरा रेसिडेंट वहाँ के निवासी हैं। और आगे क्या? क्लेम द, अच्छा और क्या? एवरीवन इज ट्राइंग टू डू व्हाट, हाँ इन्होंने क्या करा? एक क्लेम किया, क्या? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब इनका जो नाम है वो किस में आया? गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम आया फॉर सेकेंड टाइम, एक बार नहीं दूसरी बार इन्होंने लगातार इतना रिकॉर्ड तोड़ा लाइटिंग अपने घर को सजाने में। द रिचर्ड्स फैमिली वन देयर फर्स्ट टाइटल। देखो पहला टाइटल जो है ये इनको कब मिला था? क्यों मिला था? व्हेन दे क्रिएटेड अ सिमिलर डिस्प्ले इन 2011। देखो फर्स्ट जो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज करवाया था वो क्यों किया था? उसमें इन्होंने देखो कितना, करीब देखो ये 5 लाख है, यहाँ पे 3,31,038 इतनी लाइट्स उन्होंने लगाई थी। मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड में इन्होंने 2011 में इतनी लाइट लगाई थी, बट देयर फेम लास्टेड। फिर क्या हुआ कि 2011 में इन्होंने लाइट लगाई, फिर धीरे धीरे उनका जो फेम, मतलब उनका जो रिकॉर्ड है वो टूट गया, उनकी जो ख्याति है वो कम हो गई, ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े ही टाइम में, ठीक है। क्या हुआ था? ऑफ टाइम, थैंक्स टू सम न्यू। क्या कारण था? कैसे उनकी ख्याति कम हुई, कैसे उनका रिकॉर्ड टूटा? कुछ दूसरे जो न्यूयॉर्क के जो कुछ दूसरे जो लोग थे, हु आउटडिड का मतलब होता है आउट परफॉर्म, मतलब हु पास्ड या रेज्ड, है ना, वो उससे रिकॉर्ड तोड़ा। आउटडिड का मतलब है इनको सरपास कर दिया, है ना, सरपास कर दिया, मतलब इनके आगे बढ़ गए। कैसे? देम इन 2012 में जो है ये वाला जो रिकॉर्ड है, कौन सा? 3,31,000 और 38 लाइट्स का जो रिकॉर्ड है वो 2012 में तोड़ दिया कुछ न्यूयॉर्क वालों ने। और उन्होंने कितने से तोड़ा? विथ अबाउट
15,000 एडिशनल डिस्प्ले लाइट, मतलब जितनी लाइट इन्होंने लगाई उससे 15,000 लाइट एक्स्ट्रा इसमें आप जोड़ दो, है ना। 15,000 मतलब 3,46,038 समथिंग जो लाइट है वो एक्स्ट्रा लगा के इनका रिकॉर्ड 2012 में वापस टूट गया। ठीक, ये यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब आगे देखो आप, डिटरमाइन टू रिक्लेम द टाइटल, लेकिन ये जो डेविड है रिचर्ड्स, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय किया कि भैया अगली बार जो है ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड तो मैं ही तोड़ूंगा। और उसके लिए उन्होंने क्या करा, डेविड इमर्ज्ड फ्रॉम रिटायरमेंट, है ना, जो रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया था, है ना, उसके बाद वापस यहाँ पे रिटायरमेंट कौन सा, उनके खुद के कोई जॉब का रिटायरमेंट होगा, है ना, लाइट्स का रिटायरमेंट नहीं, वो वापस रिटायरमेंट से उभर कर बाहर आए, कब, अक्टूबर में। और फिर क्या किया, बिगेन द लेबोरियस प्रोसेस, बहुत ही हार्ड प्रोसेस, जो मेहनती काम था, ये इतना आसान नहीं था, ठीक है, ऑफ बिल्डिंग दिस एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग मतलब मैग्निफिशेंट, है ना, एक गॉर्जियस, एक मार्वलस जो चीज है। कितना देखो आप, 5,02,165, तो कहां 3,31,000 और कहां सीधा सीधा 500,000, 5,02,160, इतनी लाइट उन्होंने डिस्प्ले कर दी कि दूसरा जो कॉम्पिटिटर सोच भी नहीं पाए, है ना, इतना उन्होंने कर दिया। कंप्लीट विद, उसके साथ देखो क्या क्या लगाया, विद ग्लोइंग, एकदम चमकता हुआ रेनडियर, रेनडियर आपने देखा होगा, हिरण जैसा जो जानवर होता है जो बहुत पाया जाता है अलास्का में, है ना, आपके इधर रशिया में, अमेरिका में, तो उसको सजाते हैं पूरा, उसको इस तरह का पूरा एक डिजाइन उन्होंने बनाया। और उसके साथ में जो है कुछ लाउड म्यूजिक वगैरह भी उसमें ऐड करा। अच्छा आगे, दो हालांकि अचीव्ड हिज गोल, उन्होंने अपना गोल तो अचीव कर लिया, आगे क्या, सम ऑफ हिज नेबर्स हु वर स्टिल कवरिंग फ्रॉम द 2011 डिस्प्ले, मतलब कुछ नेबर जो है वो स्टिल कवरिंग फ्रॉम, मतलब उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज थी, क्यों, क्योंकि सबको पता था कि ये इस तरह का इनका घर जो है हर साल सजा रहता है ना। वो तो 2011 से ही इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, मतलब उनको जो है अब ये चीज बहुत नॉर्मल लगती है, तो वर नॉट सो थ्रिल्ड, वो इतने ज्यादा जो है एक्साइटेड नहीं हुए, इतने ज्यादा खुश नहीं हुए। अब देखो, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, चाहे आप इसको किस्मत से बोलो या फिर उसको बदकिस्मत से बोलो, क्या हुआ कि सिंस द लाइट्स आर स्ट्रंग, एकदम लटकी हुई ऐसी थी, कैसे, अक्रॉस डेविड्स प्रॉपर्टी, लाइट जो है वो केवल डेविड की प्रॉपर्टी के आसपास ही थी, तो देयर इज नॉट मच दे कैन डू। उसके अलावा जो है एक इसलिए भी खुश नहीं थे पड़ोसी, क्योंकि उन पड़ोसियों को इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है, उसी और एक जलन भी होती है, भाई इसका घर ज्यादा चकाचौंध लग रहा है, ठीक है, और हमारा घर कम लग रहा है, तो उसके कारण भी एक जलन थी, क्योंकि सारी की सारी जो लाइट्स थी वो बिल्कुल डेविड के घर पर, घर के आगे ही डेकोरेटेड थी, तो इसलिए थोड़ा सा पड़ोसियों ने अपना जो फर्ज है नाराज होने का वो अदा किया, ठीक है ना। आगे देखो, तो इसमें बिसाइड्स द कॉस्ट ऑफ द लाइट दैट टुक अ मंथ टू पुट अप, अब देखो इतना महंगा था वो सारी लाइट सजाने में, 1 महीना उसको उस कर्ज को चुकाने में उनको लगा, ठीक है, पैसा उसका लगा। द फैमिली एक्सपेक्ट टू इनकर एन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, उसके अलावा फैमिली को कितना उनको लगा कि हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी कितना आने वाला है, देखो कितना, 2300 USD, डॉलर, इतने डॉलर में जो है खाली बिजली का बिल उनका आने वाला था 1 महीने का बस, है ना। अब फॉर्चुनेटली हुआ क्या, किस्मत से क्या हुआ कि उनका जो लोकल पावर कंपनी जो थी उसने क्या करा, हैज अग्रीड, वो मान गई, क्यों, टू फॉरगो का मतलब माफ करना, द एंटायर अमाउंट, इन्होंने वो बिल लिया ही नहीं, कंपनी ने जो है वो बिल को लिया ही नहीं, तो ये एक तरह से उनके लिए अच्छा न्यूज हो गया कि उनको इतना पैसा नहीं देना पड़ा, ठीक है ना, तो ये उनके लिए एक अच्छी बात हो गई। एंड वाइल, अच्छा इसका रीजन अपने को पता चलेगा क्यों, एंड वाइल डेविड्स प्राइमरी रीजन फॉर क्रिएटिंग दिस रादर ओवरवेलमिंग डिस्प्ले, तो ये जो मुख्य जो कारण था डेविड का, भाई ये डेविड ये सब क्यों करना चाहता था, है ना, उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, ये सब सजावट करने का सेल्फिश मोटिव, उसकी खुद की खुदगर्जी थी, मतलब उसको कोई किसी को, उसको बस किसी को दिखाना था, ठीक है, तो ये एक तरह से
खुदगर्जी के जो कारण है उसी कारण से इसने करा, ये उसका मुख्य उद्देश्य था, है ना। उसको कोई कुछ वो नहीं था, लेकिन खुदगर्जी था, मतलब वो अपने आप को बड़ा दिखाना, अपना स्टेटस ऊंचा करना, उसके लिए उसने ये सब किया था। अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ एक और कुछ बेनिफिट हुआ, एक ऑल्टरनेटली भी एक बेनिफिट हुआ। कैसे? देयर इज अ ब्राइट साइड टू इट टू, मतलब एक अच्छा गुड साइड भी है जो ओवरऑल पूरी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट है। उसके इस काम से एक फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ? इट डबल्स अप एज अ फंड रेजर। ये इससे क्या हुआ कि जो पैसा, जो जैसे आपको पता है कि क्रिसमस आने वाला होता है, उसके टाइम पे जो है बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं, जो अनाथ लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करती हैं। उन लोगों ने जो है इसको यहाँ से या इसके जरिए जो है बहुत सारा फंड रेज किया, बहुत सारा चैरिटी के लिए जो है पैसा इन्होंने बहुत सारा रेज किया। तो जो लोग इसको देखने आते हैं डेकोरेटिव, उनसे वहाँ पे दान पेटी तरीका कुछ, या उनसे आग्रह किया गया कि आप जो है हमारे अनाथ आश्रम या इसके लिए कुछ पैसे दो। तो पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। क्यों? केवल इस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आने के कारण, और ये इतना बड़ा रिकॉर्ड बनने के कारण। आप देखो इन 2011 जो है क्या हुआ था, हजारों लोग जो है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो गए थे वहां पे, हजारों लोग ये देखने गए थे। और वहां उस समय देखो कितना पैसा इकट्ठा हुआ था, 72,000 USD डॉलर जो है वो अलग अलग चैरिटीज वगैरह जो है, अनाथ आश्रम जो है बच्चों के, उनके लिए पैसा इकट्ठा हो गया था। अब डेविड इज होपिंग दैट थिंग्स विल बी सिमिलर। डेविड को उम्मीद है कि इस बार भी जो इनका रिकॉर्ड बना है, चीजें वैसी ही रहेगी, इफ नॉट बेटर, है ना। अच्छी नहीं तो कम से कम उतनी तो रहेगी इस साल भी, ठीक है। एज फॉर फ्यूचर डिस्प्ले, आगे के लिए अगर हम बात करें तो ही इज सर्टनली नॉट रूलिंग देम आउट, स्पेशली इफ हिज टाइटल इज चैलेंज्ड अगेन। तो आगे के लिए उसका क्या मानना है कि अगर आगे कोई मेरा ये टाइटल जो मैंने 5 लाख से ऊपर जो लाइट्स जलाई और लाइट्स डेकोरेट किया, अगर ये कोई तोड़ता है मेरा रिकॉर्ड, तो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं और बड़ा रिकॉर्ड बनाऊं, ठीक है ना। तो एक तरह से उसने हिम्मत नहीं हारी और चीजों को भी अलाइव रखा, ठीक। तो ये आपका जो पैसेज है ये लिखा गया मीरा डोलेसिया ने, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्लियर हुआ, समझा आप लोगों ने किस तरीके से एक ऐसे डेविड रिचर्ड्स की कहानी है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड बनाया केवल अपने घर को सजाने का क्रिसमस में, और इतनी सारी लाइट्स उसने वहाँ पे सजाई, है ना। तो एक उससे क्या हुआ कि चैरिटी जो है उसको प्रोत्साहन मिला। जो भी लोकल जो नगर निगम वहाँ का जो भी म्युनिसिपैलिटी है, उन्होंने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें जो भी लोग उसको देखने गए उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के डोनेट किया, है ना। तो इससे पूरी कम्युनिटी को, समाज को भी बेनिफिट मिला, और डेविड रिचर्ड का एक स्टेटस जो है वो भी बहुत आगे बढ़ गया। और साथ में उसके देखो उसको पैसा भी कम लगा, बिजली वाले ने पूरा उसका 1 महीने का बिल माफ कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारा चैरिटी में पैसा आया, ठीक। तो ये हमारा पूरा हमने समझ लिया। क्वेश्चंस देखते, बहुत आसान पड़ जाएगा अब तो आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो द अंडरलाइन वर्ड ऑर्नेट, चलिए बताइए ऑर्नेट जो है इसका क्या मतलब है। ऑर्नेट का मैंने बताया था, ऑर्नेट के आगे ट्री लगा था ना, तो ऑर्नेट मतलब कैसा, डेकोरेटेड और या फिर ऑर्नामेंटल, है ना, और फ्लावरी या फिर एंशिएंट। तो ऑर्नेट के आगे क्या लगा था, ट्री लगा था, है ना, मतलब सजी हुई। तो ये डेकोरेटेड आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लावरी फूलों की पेड़ नहीं, एंशिएंट पुराना पेड़, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है कोई ज्वेलरी से रिलेटेड बात है ये, है ना। तो ये ज्वेलरी के सेंस में यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब डेकोरेटेड, सजी हुई। सजी हुई है ना, सजावट के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, डेकोरेटेड के सेंस में। चलिए नेक्स्ट आप देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें से आपका गलत है। याद रखना ये हमको थोड़ा सा, जितना अच्छे से हमने पढ़ा तो हम इसमें बता पाएंगे। चलिए तो क्या लिखा हुआ है, ये जो रिचर्ड्स फैमिली है डिस्प्लेड 3,31,038 लाइट्स इन 2011, कौन सा इसमें से सेंटेंस गलत है। तो ये रिचर्ड फैमिली में 2011 में देखो कितने इन्होंने लाइट्स डिस्प्ले किए थे, ये हमारा लिखा हुआ है, ये आ गया 3,31,038, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 लाख
31,038 कब 2011 में। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है, हमको गलत वाला चूज करना है। इन 2013 में क्या हुआ था, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग द प्लेस एक्सीडेड 2.3। अच्छा 2.3 नहीं है यार, 2.3 नहीं है, 2300 है। 2.3 और 2 देखो कितना फर्क है, 2.3 बहुत कम हो जाता है। देखो कॉमा लगा हुआ है दोस्तों, यही होता है हमारा रीडिंग स्किल। कितना अच्छे से हमने पढ़ा है, कितना अच्छे से हमने समझा है। जल्दीबाजी कभी नहीं करना, ठीक है ना, जल्दीबाजी कभी नहीं करना है, पूरा हमको समझना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे भले यहाँ पे 2013 नहीं दिया है, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि ये 2300 है और कॉमा लगा है, वहां पे पॉइंट लगा है, ठीक। उसके कारण जो है ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है, आप उसको राइट नहीं कर देना, ये सेंटेंस हमारा, ये हमारा राइट फॉल्स वाला सेंटेंस है, ठीक है। आगे देखो, इन 2011 में क्या हुआ था, डेविड रिचर्ड वॉज एबल टू रेज 72,000 USD। बिल्कुल सही है ये, 2011 में ये रहा, ये देखो 2011 में इन्होंने 72,000 USD डॉलर इन्होंने रेज किए थे, तो ये भी सही है। इन 2012 सम न्यूयॉर्कर डिस्प्लेड अराउंड 15,000 एडिशनल लाइट, कि 2012 में कुछ न्यूयॉर्कर ने 15,000 और एक्स्ट्रा लाइट लगाई थी, बिल्कुल सही है। ये देखो यहाँ पे ये रहा, 2012 में इन्होंने 15,000 दूसरी एडिशनल लाइट लगा दी। मतलब सारे हमारे ये वाले राइट्स हैं, केवल ये वाला जो पॉइंट बी वाला हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक। नेक्स्ट हमारे सामने है, व्हाई डिड डेविड रिचर्ड्स फेम लास्ट ब्रीफली। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में उसकी जो ख्याति है वो कैसे कम हो गई 2011 में, जब उन्होंने इतना रिकॉर्ड बनाया था 3,31,000 का, तो कैसे कम हुई, देखो कैसे, हिज नेबर्स वर नॉट सो थ्रिल्ड, वो इतने ज्यादा खुश नहीं थे इसलिए कम हुई, नहीं। ऑल दी अबो का ऑप्शन भी ये बाद में देखते हैं। सम न्यूयॉर्कर आउटडिड हिज टाइटल, है ना, ये हो सकता है क्यों, क्योंकि कुछ न्यूयॉर्कर ने उसके जो टाइटल को क्या कर दिया, आउटडिड कर दिया, मतलब सरपास, है ना, सरपास कर दिया, या आप बोल सकते हैं सीधा सीधा क्रॉस कर दिया या ब्रेक कर दिया उसके टाइटल को, मतलब उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, बेसिकली ब्रेक जो है रिकॉर्ड के लिए, तो ये हमारा सही लग रहा है। द लोकल पावर कंपनी डिड नॉट फॉरगो, देखो डिड नॉट फॉरगो, ऐसा नहीं किया था, तो ये नहीं होगा, ठीक। ऑल दी अबव भी नहीं होगा, मतलब सी वाला जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ रिचर्ड डेविस इज रिफ्लेक्टेड इन द पैसेज। क्या क्वालिटी की बात हो रही है, देखो यहाँ पे कौन सी एग्जैक्ट क्वालिटी की बात हो रही है, ये रिचर्ड डेविस की। देखो क्या, हिज डिटर्मिनेशन टू बी एक्टिव इवन आफ्टर रिटायरमेंट, कि क्या ये उनको दिखाना था कि भैया रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो कितने ज्यादा एक्टिव है ना। ऐसा तो नहीं है, क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट के कई सालों पहले तक उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, लगातार जो है 2011 में भी उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, तो ये हमारा एग्जैक्ट इनकी क्वालिटी की रिफ्लेक्शन नहीं है, डिटर्मिनेशन। आगे, हिज सेल्फिश मोटिव बिहाइंड विनिंग द टाइटल, तो एक जगह दिया तो है कि वो सेल्फिश मोटिव, लेकिन उनका सेल्फिश मोटिव भी हल हुआ, वो भी था शुरू में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चैरिटी से भी बहुत सारा पैसा आने लगा, है ना। तो एक केवल वही रीजन नहीं हो सकता, यही क्वालिटी जो है पूरे के पूरे पैसेज में ये तो नहीं बताया गया है कि ये जो रिचर्ड है ये कितने ज़्यादा खुदगर्ज है ना, ये बताया गया क्या, इस क्वालिटी की बात हो रही है क्या कि वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रहा है। हिज कन्विंसिंग एबिलिटी, दूसरों को मनाने, दूसरों को राजी करने की एबिलिटी, तो उसमें इन्होंने जो है किसी को राजी तो किया नहीं, किसी को कन्विंस तो किया नहीं, इन्होंने तो अपने दम पर, अपनी जो लाइट्स थी उसके डेकोरेशन के दम पर इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम मिला। कोई इन्होंने जाके वहाँ पे किसी से आग्रह नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं की, ठीक है ना, तो ये भी आपका एकदम राइट क्वालिटी तो इनकी नहीं बता पा रहा है। लास्ट आप देखो, हिज चैलेंजिंग स्पिरिट, ये जो बंदे हैं एकदम चैलेंजिंग स्पिरिट, हमेशा अपने आप चैलेंज करते हैं। देखो लास्ट की एक लाइन है, उसमें भी दिया है कि अगर कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा तो मैं वापस से इस रिकॉर्ड को, ये देखो चैलेंज्ड अगेन, टाइटल को जो है
मैं वापस इसको रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। इसका मतलब उनकी जो स्पिरिट है वो कैसी है, एकदम चैलेंज करने वाली, वो किसी भी चुनौतियों को एकदम चैलेंज करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी वाला राइट आंसर हो गया। फिर आप देखें व्हाट वाज द मेन मोटिव, मुख्य जो कारण है, मोटिव बिहाइंड डेविड्स डिटर्मिनेशन, ये जो उनका जो दृढ़ता है उसके पीछे क्या कारण है, टू क्लिंच द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना, ये जो लिया उसका मुख्य उनका क्या मोटिव है इसमें, ही वांटेड टू रिटर्न हिज लॉस्ट टाइटल, कि जो उसका अच्छा टू क्लिंच द वर्ल्ड, जो उनका टाइटल जो पहले उनको प्राप्त था, ख्याति, उसको ये वापस से ही वांटेड टू रिटर्न, वो रिटर्न करना चाहते थे, ये रीजन है नहीं। ही वांटेड टू डोनेट फॉर चिल्ड्रंस चैरिटी, वो पैसा डोनेट करना चाहते थे, नहीं, वो डोनेट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने चैरिटी में पैसा नहीं दिया, लेकिन उनके डेकोरेशन के वजह से, उनका जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, जो खर्च उन्होंने किया, उसकी वजह से बहुत सारा डोनेशन आया, तो इनडायरेक्टली उन्होंने डोनेट किया, ये भी नहीं होगा। ही वांटेड हिज नेबर्स टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, वो चाहते थे कि भाई उनके जो पड़ोसी हैं वो भी उनकी तरह इतना खर्चा करे, वो गिनीज बुक में नाम दर्ज कराए, ऐसा कुछ किया था, ऐसा भी कहीं पर बताया नहीं गया है। ही हैड नो डिजायर टू विन इट द सेकेंड टाइम, तो ही हैड नो डिजायर, उनकी कोई ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी टू विन इट फॉर सेकेंड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि दूसरी बार जो है उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो दूसरी बार भी जीते। तो ही वांटेड टू डोनेट, अच्छा ही वांटेड, अच्छा व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड डेविड्स डिटर्मिनेशन टू क्लिंच द गिनीज बुक ऑफ, ही वांटेड टू रिटर्न हिज लॉस्ट, अच्छा ही वांटेड टू रिटर्न his lost title, he wanted to donate for children's charity, he wanted his neighbors to follow, तो यहाँ पे जो सबसे एग्जैक्ट जो है वो ए वाला हमारा लग रहा है कि he wanted to return his lost title, मतलब जो टाइटल उनका क्या हुआ था, किसी उनका रिकॉर्ड जो टूट गया था, ठीक है, 2011 में 15,000 से जो है दूसरे किसी न्यूयॉर्कर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है ना, तो ये जो रिकॉर्ड उनका जो तोड़ दिया था, ठीक है ना, ये जो रिकॉर्ड इनका तोड़ दिया था, यहाँ पे उस रिकॉर्ड को वापस, ही वांटेड टू रिटर्न का मतलब टू गेट बैक, यहाँ पे रिटर्न का जो मीनिंग है यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है ना, टू गेट बैक, टू गेट बैक, ये सेंस में यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये हमारा ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल डिटेल में कोशिश की है, बिल्कुल एक एक आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो, और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, मतलब किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, वो हमने डिस्कस किया। अगला जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर में।